So it was a day of grand gestures by Prime Minister Narendra Modi at the Ardh Kumbh, where PM Modi not only felicitated and acknowledged the contribution of sanitation workers, but also washed their feet, showing their respect for the commendable work that they have been doing. Listen into this full report. A dip of faith, a celebration of spirituality, a political gesture. It was Prime Minister Narendra Modi's big day at the ongoing Kumbh. The Prime Minister was on a journey of faith to Prayagraj, taking the much coveted snan at Prayagraj. प्रयाग की भूमि पर मैं एक बार फिर आकर अपने आप में धन्य महसूस कर रहा हूं। इस बार संगम में पवित्र स्नान करने और पूजा करने का परम सौभाग्य मुझे मिला है। Accompanied by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Governor Ram Nayak, Prime Minister Modi took part in a Ganga Aarti, followed by a puja on the banks of the holy Ganga. The Prime Minister then took part in a ritual that won many hearts, himself washing the feet of sanitation workers as a mark of extreme gratitude for their role in keeping the Kumbh clean. मुझको बहुत गर्व हुआ, मुझे मान सम्मान मिला और मैं सोचती हूँ कि हर बार हम लोगों के साथ ऐसा ही हो। बहुत हमको अच्छा लगा है, बढ़िया हमारी स्वागत किया, अच्छे से बोले बताने सब लोग स्वागत किया। हमें बहुत अच्छा लगा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कुंभ में स्वच्छता की इस बार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रशंसा के असली हकदार आप लोग हैं। सफाई के काम में जुटे मेरे भाई बहन हैं। Modi also felicitated sanitation workers for their commendable work during Kumbh. With cleanliness and Swachh Bharat initiatives given unprecedented focus in Kumbh this year, Prime Minister once again reiterated his commitment for the Namami Gange project. साथियों, गंगा जी की निर्मलता नमामि गंगे मिशन की दिशा और सरकार के सार्थक प्रयासों का भी उदाहरण है। प्रधानमंत्री के नाते मुझे जो उपहार मिले हैं उनकी नीलामी करके भी जो कुछ मुझे मिला है वो भी मैंने मां गंगा की सेवा में समर्पित कर दिया है। A day of mega political messages and outreach from Modi less than 100 days before polls. Will the big outreach pay off in India's most politically crucial state? The biggest challenge before the state administration, the local administration and civic authorities were to ensure safety and security as well as providing basic civic amenities to all the pilgrims, which the state government, civic authorities in collaboration managed very well. Winding up with this, my last report from Prayagraj, as it is the last leg of Kumbh in the holy city. With Shakil Ahmed, this is Ashutosh Mishra for India Today. Now, the highlight of the event also was the Prime Minister honouring sanitation workers at the Swachh Kumbh Swachh Abhar event organised by the Ministry of Drinking Water and Sanitation in Uttar Pradesh's Prayagraj, erstwhile Allahabad. Prime Minister Modi was seen washing the feet of a group of sanitation workers as a mark of respect. PM Modi acknowledged efforts made by the Swachh Karmcharis to keep the Kumbh grounds clean and hygienic. He also distributed Swachh awards to sanitation workers. One of them, in fact, has said it is nothing less than a dream and that Modi deserves another chance as the country's head. प्रधानमंत्री जी ने आज आपके चरणों को धुला, उसके बाद आपको अंग वस्त्र दान दिया, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? अरे हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसी सफाई हम कभी नहीं देखा, बहुत मेला किया कहीं। लेकिन प्रधानमंत्री आपके पैरों को धुले, ये आपके लिए सम्मान की बात है। क्या कहना चाहते थे इसके जरिए प्रधानमंत्री? हमको क्या कहना चाहते थे? आपका दिल क्या कहता है? हमारा दिल ये कहता है कि इसी तरह प्रधानमंत्री बने। मुझको बहुत गर्व हुआ, मुझे मान सम्मान मिला और मैं सोचती हूँ कि हर बार हम लोगों के साथ ऐसा ही हो। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? हमारे चौबी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बांदा।
अच्छा, जब आज प्रधानमंत्री जी ने आपसे बात की, पैरों को धुला, तो क्या आपके मन में ख्याल पहला आया? अरे बहुत हमको अच्छा लगा है, बढ़िया हमारी स्वागत किया, अच्छे से बोले, बताने सब लोग स्वागत किया। बुरेलाल, ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री ने आपके पैरों को धुला तो पहला ख्याल आपके मन में क्या है? हमें बहुत अच्छा लगा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। क्या मन में कुछ भावुक हो गया? ऐसा लगा क्या यही रहे प्रधानमंत्री, यही रहे प्रधानमंत्री। क्या कहना है, जो आए थे अच्छे स्वच्छता के लिए बधाई हुआ है, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जी ने जो पैरों को धुला उससे क्या लगा? उससे बहुत अच्छा लगा हुआ है, भगवान उनको, गंगा माई उनको बना रखे। While clearly Prime Minister also showered praises on the volunteers, sanitation workers and the background workers who seem to have worked hard to make the Ardh Kumbh a successful event. Listen in. कुंभ में हठ योगी भी है, तप योगी भी है, मंत्र योगी भी है और इन्हीं के बीच ये कर्मठ मेरे कर्म योगी भी है। ये कर्मयोगी मेले की व्यवस्था में लगे वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई है। मैं एनडीआरएफ के हमारे साथी भाई राजेंद्र गौतम को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने श्रद्धालुओं के जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इन कर्मयोगियों में वो नाविक भी हैं जिन्होंने मां गंगा की साधना करने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया। इन कर्मयोगियों में प्रयागराज के स्थानीय निवासी भी शामिल हैं, जिनकी तपस्या मेला शुरू होने से महीनों पहले ही शुरू हो गई थी। साथियों, कुंभ के कर्मयोगियों में साफ सफाई से जुड़े कर्मचारी और स्वच्छाग्रही भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने प्रयासों से कुंभ के विशाल क्षेत्र में हो रही साफ सफाई को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। So what do these volunteers whose work was acknowledged have to say? My colleague Ashutosh Mishra brings this special interaction with the workers and volunteers from Ardh Kumbh. Listen in. World's biggest religious congregation, Ardh Kumbh, here in Prayagraj, a grand scale ever celebration which even the locals believe they never witnessed. And these are the sanitization workers, their effort to ensure hygiene and cleanliness across Prayagraj at the Sangam area, which was even praised by the Prime Minister Modi. We'll have the words from these people. कैसा लगता है जब अमूमन हम ये देखते हैं कि जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, समाज उन्हें एक अलग नजरिए से देखता है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद जब आते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, ये मौका कैसा था आपके लिए? बहुत अच्छा था। कुछ लोग को तो हमने ऐसा देखा है कि अगर हम काम करते हैं तो आते हैं लोग तो मतलब छूत मानते हैं, बोलते छूना नहीं, हमें ये नहा कर स्नान करके। लेकिन आज प्रधानमंत्री ही हमको ये किया, एकदम शॉर्ट सा लगा हमको कि कैसे आज ऐसा हो गया हमारे साथ। लाखों करोड़ों लोग सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया से आते थे। कितना बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए लगता था इस तरह से साफ सफाई इंश्योर करना? क्योंकि मैं भी यहाँ 40-45 दिन रहा, मैंने लगातार देखा कि साफ सफाई थी, कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पर कूड़ा कचरा दिखाई पड़े या गंदगी थे। तो तारीफ के काबिल तो आप लोग हैं ही। कितनी बड़ी चुनौती थी आप लोगों के लिए? चुनौती के साथ साथ मतलब ये हम लोग के मन में ये था कि हम लोग जैसे सरकार चाहती थी कि साफ सफाई, फिर उतनी सुविधाएं भी हुई थी, जगह जगह पर डस्टबिन लगे हुए थे और ड्यूटी करने का समय भी बहुत अच्छा था और सारी सुविधाएं भी अच्छी थी, तो इससे मजा आता था, खुशी होती थी क्योंकि ड्यूटी भी कर रहे हैं, मेले को भी एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छा लगता था हमको।
And these people, they have been rewarded by the Prime Minister. Namrata Singh, one of the volunteers who was part of this cleanliness drive across, as the theme was Swachh Kumbh. आपके लिए कैसा मौका था when Prime Minister came and आपके काम की जो तारीफ की है? हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका था और हमको बहुत बहुत अच्छा लगा कि हमें प्राइम मिनिस्टर जी से अवार्ड मिला है। इसके लिए टास्क कितना बड़ा था आपके लिए? 1.5 महीने का दुनिया का सबसे बड़ा मेला इसे कहते हैं। गंदगी होती थी, लोग आते थे, कूड़ा कचरा यहाँ पर फेंकते थे, तो चैलेंज कितना बड़ा था आपके लिए? चैलेंज तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन हमारे जितने स्वच्छाग्रही हैं सब मिलके इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया और पूरा किए इसको। एक जुनून था कि जो भी यहाँ पे आए एक मैसेज लेके जाए कि कितना। राजकुमार सिंह, अनदर वॉलंटियर हु हैज बीन रिवॉर्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये मौका कैसा था जब साफ सफाई करना अभी भी हमारे समाज में एक मेंटालिटी है, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में या रूरल इलाके में, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर खुद आकर के प्रेस करते हैं आपके काम को, ये मौका कैसा होता है? ये हम लोगों को अपने कार्य पे आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा ऊर्जा देता है। हम लोग जितनी मेहनत से यहाँ पे काम किए हैं और अब जिस सेक्टर में भी जाएंगे, जहाँ जाएंगे, उससे उतनी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। जब तक पूरा भारत हमारा स्वच्छ नहीं हो जाता, प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा नहीं हो जाता, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। एक सवाल, जो तस्वीर हमने देखी कि स्वच्छता गृहियों के, सफाई कर्मचारियों के, प्रधानमंत्री खुद उनके पैर धो रहे हैं, ये तस्वीर क्या कहती है? इस तस्वीर का तो कोई जोड़ नहीं है। ये कहानी सुदामा और श्री कृष्ण की उन्होंने दोहरा दी है। उन्होंने सचमुच जतला दिया है कि जो है वो जो कहते हैं स्वच्छता के बारे में तो दिल से कहते हैं और करते भी हैं। जैसे कि बस एक आशा करते हैं कि हमें कहाँ तक और कहाँ तक ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की मानसिकता बदलना, किसी के दिमाग में जो हजारों सालों से चलता आ रहा है, दिमाग में सेट है आदमी के कि कैसे क्या करना है, लेकिन उस कुप्रथा को हम लोगों ने बंद कराया है। And those images that you saw on your television screen, that Prime Minister Modi washing feet of the sanitation worker, भूरेलाल and ज्योति, these two people, आप लोग कहाँ से आए हैं? संभल जी, कोरबा से, छत्तीसगढ़। कोरबा से। और वो मोमेंट आपके लिए कैसा था जब आपने 1.5 महीने यहाँ पर मेहनत की, ये कोशिश की, हम सब ने तस्वीरें देखी कैसे सब कुछ साफ सुथरा था, प्राइम मिनिस्टर खुद आपके पैर धो रहे थे, वो मोमेंट आप लोगों के लिए कैसा था? जी बहुत अच्छा था। कभी सोचे नहीं थे कि हमारा मान सम्मान होगा और खुद प्रधानमंत्री आएंगे, हमारा चरण धोएंगे और आशीर्वाद देंगे, वस्त्र पहनाएंगे, सम्मानित करेंगे। आप लोगों से कुछ बात भी हुई, उनकी कुछ बातें? यही बात किए हैं कि आप कै महीने से हो, कब से काम कर रहे हो। भूरेलाल, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई वाले लोग हैं, उनको लेकर के कोई बहुत अच्छी बातें नहीं कही जाती। एक तबका है जो एक अलग नजरिए से देखता है। आज प्रधानमंत्री आपके पैर छू रहे, आपको लगता है कि साफ सफाई को लेकर के नजरिया बदलेगा? बदल जाएगा सर, जब प्रधानमंत्री चरण धो रहा है तब बदल जाएगा, पक्का बदलेगा। That's a big message from Prayagraj that these volunteers, those who have ensured safety. बोलिए। सर, हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी ने इतना हम लोगों के लिए किया है सर, इसमें हम लोगों को मानदेय भी वो यदि वो रख दे तो हम लोगों के लिए और भी ज्यादा grievance that some amount should be given to them as towards their hard work, towards their effort. But the biggest message loud coming from Prayagraj that these volunteers will continue the efforts that the task of cleanliness and to clean Prayagraj for Kumbh will continue further. हम सब ने ये ठाना है, कुंभ को स्वच्छ बनाना है, हम सब ने ये ठाना है, कुंभ को स्वच्छ बनाना है। Out of many point of attraction here in Kumbh, Namo merchandise was a key, one of the major point of attraction, and these the volunteers who are associated with Namo merchandise will have words with them. ये जो पूरा कुंभ था, इसके कई सारे नैरेटिव और डायमेंशन देखे जा रहे हैं। एक तो ये है कि कुंभ के जरिए बीजेपी पॉलिटिकल स्कोर बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना बड़ा कांग्रीगेशन था, जितने बड़े लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया गया, क्या मैसेज आपको समझ में आता है बाहर गया है? कैसे आप ये कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी इसको अपना मनाया हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बार ऐसा संयोग हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये एक अर्ध कुंभ को हम लोग ने कुंभ का दर्जा दिया है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें देख रहे हैं। अट्रैक्शन पॉइंट है, नमो मर्चेंटाइज स्टॉल भी आपने लगाया है और यहाँ जो आएंगे वो देखेंगे, देखिए कि प्राइम मिनिस्टर का स्टैचू है, वहाँ पे लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं, नमो मर्चेंटाइज बिक रही है। तो क्वेश्चन अपने आप लोग पूछेंगे कि क्या बीजेपी इसको एक माइलेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है इलेक्टोरल गेन के लिए?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक संयोग है कि इस कुंभ के माध्यम से एक नमो ऐप में ये एक अपनी जो भारत की संस्कृति की पहचान के लिए कि यहाँ पे सामान जो भी है एक नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा हेतु नारी सशक्तिकरण की पहचान बनाने के लिए ये टी शर्ट है। और नमो ऐप की ये जो टी शर्ट और ये कैप्स वगैरह हैं, इनका कोई ऐसा वो नहीं है, बस ये है कि एक साधारण वे में मेले में ये कार्यक्रम लगा के लोगों को प्रसारित करने के माध्यम से इनको दिया गया है लोगों को। प्रयागराज कुंभ was all about color, different colors of rich tradition and culture. कहाँ से आए हैं आप? देवरिया जिला। देवरिया। क्या नाम है आपका? राधेश्याम राय। ये जो आप गा रहे हैं इसे क्या कहते हैं हमारे कल्चर में? नैन है तो देख रहे हैं, कान है तो सुन रहे हैं, मैं हर उनको रिझाता हूँ जिन्होंने संसार रख, मुझे आनंद आता है। Something very common all across this संगम area, across the corner. आप लोग कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से ही हैं। अब ये पूरा फेस्टिवल खत्म होने को आया, इतने बड़े स्केल पर था। लोकल जो लोग हैं प्रयाग के, उनके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? हम वैसे हरियाणा से आए हुए हैं, वैसे आज स्नान करने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत मोदी जी की कृपा है। आप लोगों के लिए कैसा एक्सपीरियंस था इस बार प्रयागराज का ये कुंभ? इतना अच्छा नया क्या देखा जो पहले कभी नहीं देखा? ऐसा पहले कभी नहीं देखा, बहुत अच्छा। क्या नया लगा? मैं हर चीज नया ही नया है। अमृत की वर्षा बढ़ती। सारे लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से आए हैं, ईस्टर्न यूपी के ही। आप हमेशा आते होंगे प्रयागराज, कुछ नया आपको दिखाई पड़ा? हाँ, इस बार सफाई के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था थी, काफी व्यवस्थाएं अच्छी रही और पहले से बहुत अच्छा भी है। आप लोगों ने कुछ नया देखा यहाँ पे? यहाँ पे साफ सुथरा और बढ़िया व्यवस्था है इस बार। बेसिकली हाइजीन और क्लीननेस सबसे ज्यादा नजर जाता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। सर ये बताइए, आप लोग लगातार ड्यूटी कह रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज था सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना जब दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे थे? अच्छा, सब व्यवस्था सही रहा सर, बहुत बढ़िया। लोगों पर जिम्मेदारी थी, कितनी बड़ी चुनौती भी थी, खासकर ये देखना कि कोने कोने पर नजर रहे, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जो पिलग्रिम्स को नुकसान पहुंचे। हाँ सर, हम लोग तो 12-12 घंटा जग करके ड्यूटी कर रहे थे सर। लेकिन तकलीफ नहीं होगा इसका? तकलीफ तो होता है, होता ही है। ओके, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल से। कैसा रहा ये अर्ध कुंभ का एक्सपीरियंस? अब ये मेला खत्म होने को आया। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा और काफी साफ सफाई थी इस बार यहाँ पर, और इस चीज से हम बहुत प्रभावित हुए, जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं और फिर भी इतनी साफ सफाई मेंटेन करना। आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लगा जो अब इम्पैक्ट दिमाग पर छोड़ जाएगा, एक इमेज छोड़ जाएगा? सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये है कि जो ये जागरूकता अभियान है सफाई के चलते, उससे लोगों में एटलीस्ट इतनी जागरूकता अभी है ऑन लार्ज स्केल कि हमें यहाँ कुछ ज्यादा कोई गंदगी नहीं मिली। ओवरऑल में बहुत ही अच्छा था सफाई के मामले में। तो आई थिंक जो लोगों का जो एक्चुअली जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसका असर लोगों की अवेयरनेस के थ्रू दिख रहा है हमें। Having covered this world's biggest congregation in Prayagraj for more than 45 days, to me this Kumbh means fusion of advanced technology and rich Indian tradition. Arrival of millions of devotees, pilgrims and tourists from all across the globe. The biggest challenge before the state administration, the local administration and civic authorities were to ensure safety and security as well as providing basic civic amenities to all the pilgrims, which the state government, civic authorities in collaboration managed very well. Winding up with this my last report from Prayagraj, as it is the last leg of Kumbh in the holy city. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.